Students, I welcome you all to my channel. So here is a video for you on area related to circle in continuation with the previous videos. The question here is to warn ship for underwater rocks, a lighthouse spreads a right colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometers. Find the area of the sea over which the ships are warned. So let is a circle of radius 16.5 kilometers and the angle is 80 degree. We have to use pi value of y is 3.14. So radius of circle is equal to 16.5 kilometer and the angle of sector is equal to 80 degree. Value of pi 3.14. Therefore area of sector is equal to pi r square theta upon 360 degree. Value pi is 3.14. R is 16.5 kilometer square and value of theta is 80 degree upon 360. 314 upon 314 upon 100, 165 upon 10, 165 upon 10, 80 upon 360. अगर इसे हम कटिंग करें 0 0, 2 से कटिंग की 4, 18, 2 से अगेन 2, 9, 9 से 3 से कटिंग करी, यहाँ आ गया 3, 5 एंड 5, 3 के टेबल से करी, 3 से अगेन 55, 5 से 11, 2 की यहाँ होगी. अब ये रह गया हमारा 314 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 11. मैं आगे लिख रहा हूँ 314 55 11 और नीचे बचा है 1000. तो इसको अगर हम पूरा कटिंग करें तो ये आ जाएगा 189.97 kilometer square. So this is the area of the sector जिस एरिया पर शिप्स को वार्न किया जा सकता है थ्रू द रेड लाइट. तो दैट इज the total area of the sector is 189.97 kilometer square. So next question. The next question, a round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. We have to use value of under root 3 as 1.7. So here this is a circular cover, round table cover. This is circular in shape and the corner of this
The designs are in the form of segments. The radius of the circle is 28 centimeter. So just see, here are 6 equilateral triangles. So 6 equilateral triangles are there. So therefore, each angle of the equilateral triangle, you know, that is of 60 degree. So therefore, the angle subtended by this chord at the center, that will be of 60 degree. So therefore, radius of circle 28 centimeter, angle at the center 60 degree. Value of under root 3 we have to use, that is 1.7. The area of one of the design is equal to area of segment. और वो बराबर होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल AOAB. So area of sector, that is pi r square theta upon 360 minus 1 upon 2 r square sine theta. Pi is 22 upon 7, r square is 28 centimeter square, square of 28 centimeter, theta is 60 degree upon 360 minus 1 upon 2 r square again, square of 28 centimeter and sine 60 degree. (22 upon 7), 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कटिंग होकर आ गया 1 upon 6, 1 upon 2, 28 and sin 60 is under root 3 upon 2. 7 से कटिंग की 4, 2 से कटिंग करी 3, ये हो गया 2, तो आ गया 22 गुना 2 44 गुना 28 अपॉन 3 माइनस ये हो गया 2 से कटिंग की 14, 2 से कटिंग की अगेन 14, तो आ गया 196 अंडर रूट 3 इज 1.7 upon 1. अब इसको मल्टीप्लाई किया 44 को 28 से, 2 3 2 1, 1 2 3 2 upon 3 minus 196 multiply 1.7, 7 6 42, 63 4 67,
13, 6, 9, 1, 2, 3, 3, 2. 2, 3, 3 और ये हो गया 3. 333.2 upon 1. एलसीएम हुआ इसका सारे का 3. सो 1, 2, 3, 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 9, 9 एंड 9. 1232.0 माइनस 999.6, 4, 2, 4, 2. यह है 242.4 अपॉन 3 centimeter square. The area of one of the segment is 242.4 upon 3 centimeter squares. Just check again the difference. 11 minus 9, 2, 12 minus 9, 12 minus 9 is 3. 11 minus 9, 2. So that is 232.4 upon 3. The multiplications. अब ये है एरिया ऑफ वन ऑफ द सेगमेंट. अब सेगमेंट यहाँ पर नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो टोटल एरिया ऑफ द 6 सेगमेंट दैट विल बी इक्वल टू area of all the 6 segments. अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करें. 6 मल्टीप्लाई 2, 3, 2.4 डिवाइड बाई 3, 8, 4, 6 एंड 4. तो यह टोटल एरिया आया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें निकालनी है इसकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज़ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. तो 464.8 मल्टीप्लाई 0.35. तो 464.8 मल्टीप्लाई 35, 5 8 40, 20 और 4 24, 30 2 32, 20 3 23, 8 3 24, 12 और 2 14, 18 1 19, 12 1 13, 0 8 6 2 और 16. डेसिमल लगेगा. 2 के बाद ये है और एक ये 3 के बाद, यानी टोटल कॉस्ट आ गई 162.68. तो रुपीज़ 162.68 दैट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन. सो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन था, एक बार फिर आपको बता दूँ, एक सर्कुलर टेबल है, उसके ऊपर क्लॉथ रखा है, टेबल कवर है, जिसका के रेडियस है 28 सेंटीमीटर और उसके ये जहाँ पर ये सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स जो पोर्शन है वहाँ पर एक डिज़ाइन बना है. तो इससे यहाँ पर 6 सेगमेंट्स हैं और जो क्योंकि ये शेप देखो, शेप से पता चलता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है.
6 बराबर हिस्से हैं इसके, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 6 से 360 को अगर 6 से डिवाइड करें तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। और ये एक तरह की इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हम इसमें यहाँ पर फार्मूला जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एरिया का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने साइन की वैल्यू यूज़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग area of a sector of angle P in degree of a circle with radius R is, ये यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इज P अपॉन 180 इंटू 2 पाई R, B इज P अपॉन 180 इंटू पाई R स्क्वेयर, थर्ड ऑप्शन P अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई R, and fourth option is P upon 720 multiplied 2 pi R square. The radius of the circle is given. Given is R, angle at the center P. Therefore, area of sector will be pi R square theta upon 360 degree. Substituting the values given, so pi R is capital R square, theta की जगह आएगा P upon 360। अब ये होना चाहिए आंसर। अब हमें दिए गए 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन में पहले में देखो P अपॉन 180 इंटू 2 पाई आर, तो ये तो क्योंकि 2 पाई आर जो फार्मूला होता है ये होता है सर्कमफ्रेंस का, यानी ये तो पहले ही रिजेक्ट हो गया, तो इसको आप पहले ही काट दें। इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन में भी देखा लिखा P अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर अगेन, सो ये भी कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये भी जो फार्मूला है सर्कमफ्रेंस का। अब रह गए सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शन B और D। सो B और D में देखिए तो यहाँ लिखा P अपॉन 180 पाई आर स्क्वेयर, तो पाई आर स्क्वेयर होता है एरिया ऑफ सर्कल, और P अपॉन 80 थीटा अपॉन 180 जो है तो ये हो गया हाफ सर्कल का। तो इसलिए ये भी जो है रिजेक्टेड है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बची है D। तो इसको अगर हम देखें डी ऑप्शन थी P अपॉन 720 मल्टीप्लाई 2 पाई R स्क्वेयर, और 2 से इसकी कटिंग करें तो आ जाता है 360, यानी ये बन जाता है P अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई R स्क्वेयर, और ये वही ऑप्शन है जो हमारे पास यहाँ पर हमने सॉल्व की थी, तो ये ऑप्शन इसके साथ मैच करती है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारे मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन। सो एरिया ऑफ द सेक्टर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो बतानी थी कौन सी ठीक है। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the area of the shaded region in the figure if PQ is 24 centimeter, PR is equal to 7 centimeter and O is the center of the circle. We have to use pi as 22/7। अब फिगर को देखिए तो क्योंकि ROQ is the diameter of the circle, तो और इसलिए ये क्या हो गया सेमी सर्कल, तो इधर भी सेमी सर्कल हो गया। डायमीटर क्योंकि इसको सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, तो ये आधा सर्कल हो गया, आधा सर्कल ये सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में बना हुआ जो एंगल होता है, एनी एंगल एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो इसलिए ये बन गई PQR इज ए राइट ट्रायंगल, और एंगल P जो है वो 90 डिग्री का है। तो उसके सामने जो साइड होती है राइट ट्रायंगल में, जैसे हम जानते हैं कि एक राइट ट्रायंगल के अंदर
जो साइड होती है अपोजिट द राइट एंगल दैट होती है हाइपोटेन्यूज, और उनमें से एक बेस होती है, दूसरा परपेंडिकल। तो यहाँ पर हमें इस राइट ट्रायंगल में यानी बेस और हाइट जो है एल्टीट्यूड दे रखी है, परपेंडिकल और जो हाइट है परपेंडिकल और बेस, और निकालना इसका हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ लिखेंगे since ROQ is the diameter of the circle, therefore angle RPQ is equal to 90 degree, angle in the semicircles। तो ये होगी राइट ट्रायंगल। सो इन राइट ट्रायंगल PQR, अब उसमें से RP जो है वो है 7 सेंटीमीटर, PQ जो है वो है 24 सेंटीमीटर। देयरफॉर जो हाइपोटेन्यूज होगी RQ दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ PQ प्लस स्क्वायर ऑफ RP और उसका अंडर रूट। तो PQ इज 24 सेंटीमीटर, RP 7 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐड करके आया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका अंडर रूट अगर करें, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है 625, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट करने पर आया 25 सेंटीमीटर, यानी जो हाइपोटेन्यूज जो था ऑफ राइट ट्रायंगल PQR का वो बन गया 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये एक तरह से सर्कल का डायमीटर है। तो रेडियस, तो यहाँ लिखेंगे डायमीटर ऑफ द सर्कल, diameter of circle is equal to 25 centimeter. Therefore radius is equal to 25/2 centimeter. अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द डिज़ाइन के एरिया ऑफ द शेडेड रीजन और एरिया ऑफ द डिज़ाइन। उसका निकालने का तरीका ये है कि हम सेमी सर्कल का एरिया निकालें और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया जो है माइनस कर दें, तो आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR क्योंकि राइट ट्रायंगल है, उसका एरिया होता है सो 1/2 पाई r स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। पाई r स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल, और तो हाफ किया तो बन गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ triangle PQR, this is a right triangle, that will be 1/2 into base RP multiply PQ। पाई की वैल्यू 22/7, R is 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2, RP is 7 सेंटीमीटर, PQ is 24 सेंटीमीटर,
तो ये आया 1/2 22/7 मल्टीप्लाई 25 अप टू 25/2 माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से कटिंग की तो आ गया 625 मल्टीप्लाई 25 दैट इज 625 मल्टीप्लाई 11 55 27 68 7 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 28 तो 6875 माइनस 84 एलसीएम होगा इसका 28। अब 28 को 84 से मल्टीप्लाई किया 8 4 32 64 प्लस 3 67 8 16 2 15 13 और 2 तो 6875 माइनस 2352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6875 माइनस 2352 3 2 5 and 4 4 5 2 3 upon 28 centimeter squares. So this is the area of the shaded region. तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये हमने कैसे निकाला एक बार फिर आपको बता देते हैं। तो इसमें हमें दे रखा था ये डिज़ाइन बना है और उसमें एक हमें दे रखी थी ये वाली साइड PQ 24 RP दे रखी थी 7। सो ये क्योंकि एक इसका डायमीटर है इसलिए ये रह गया सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसलिए फिर ये राइट एंगल पर हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, वो बन गया इसका डायमीटर, उसको हाफ किया रेडियस और उसके बाद एरिया ऑफ द सेमी सर्कल निकाला, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया तो आ गया एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन in the figure if radii of the two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and the angle AOC is equal to 40 degree। अब फिगर देखिए, फिगर में ये सेंटर O है और इस सेंटर O से जो है दो सर्कल एक ही सेंटर को यूज़ करके दो सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। तो जो इनर सर्कल है जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर दैट इज OB रेडियस दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल दैट इज OC दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। द टू circles are concentric using the same center, the smaller circle and the larger circle, और उनके बीच में जो रीजन बचा है यानी जिसको हम रिंग भी बोलते हैं, तो उस रिंग का एक थोड़ा सा पार्ट जो कि मैंने ब्लू शेड किया है इसका हमें एरिया निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे हम कि यहाँ पर दो सेक्टर्स बने हैं, एक सेक्टर है AOC, ये सेक्टर है बड़े सर्कल का, और दूसरा सेक्टर बना है BOD। तो BOD जो छोटा सेक्टर है उसका एरिया हम माइनस करेंगे बड़े सेक्टर में से और जो डिफरेंस होगा वो बन जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल
that is OA OC, that is equal to 14 centimeter. Angle is 40 degree. So area of bigger sector, that is pi r square. मैं r यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कैपिटल R, क्योंकि ये बड़ा सर्कल है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं रेडियस. कैपिटल R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. So pi 22 upon 7, r is 14 centimeter and theta is 40 degree, 360. 22 upon 7, 14 multiply 14 centimeter square, और इसकी कटिंग की आ गया 1/9. तो 7 से कटिंग की तो यह टोटल आ गया 22 इंटू 2 44. 44 को 14 से मल्टीप्लाई किया, 44 आर 56, 616 upon 9 centimeter square. So this is the area of the bigger sector. अब हमने निकालना एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर. उसके लिए रेडियस है 7. रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल that is small r is 7 centimeter. Angle again 40 degree. So area of smaller sector, a sector of smaller circle, pi r square theta upon 360 again, 22 upon 7 centimeter, 40 upon 360. सेवन सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर और इसकी कटिंग से आ गया अगेन 1/9. 7 से 7 कटिंग की तो आ गया 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यह है रेडियस ऑफ द स्मॉलर सेक्टर. अब हमें निकालना एरिया ऑफ द बिगर इस जो बीच में जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना. So area of the shaded region that will be equal to area of the bigger sector, area of sector AOC minus area of sector BOD. तो उसका एरिया था 616 अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और वो था 154 अपॉन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. LCM is again 9. So 616 minus 154 centimeter square. So subtract किया 2 6 4 462 upon 9. 3 के टेबल से इसको कटेंगी. 154 upon 3 centimeter squares. So this is the area of the shaded region.
तो इसमें दो सेक्टर्स के एरिया में से दोनों को माइनस किया तो आ जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, I have given you solution for some of the questions today. So I request you to like and share the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.